So hello everyone. In this particular class, I'll be teaching you exercise 14D. I'll explain you the concept and few questions of exercise 14D. So basically, what are the concepts you require in this? And let me explain you those things first. Okay. So let us start with the first concept, that is the arithmetic mean. Okay. What is arithmetic mean between two numbers? Let us start with two numbers first. So suppose you want to find out arithmetic mean between two numbers, let's take A and B. Okay. Suppose you want to find out arithmetic mean between two numbers, let's take A and B. And I'm denoting arithmetic mean with capital A. So suppose if A and B are the two numbers and in between you want to insert an arithmetic mean. So this number should be such that capital A minus small a should be equals to B minus capital A. That is, common difference should be equal. For example, suppose you have got 2 and 6, two numbers. If I ask you what is the arithmetic mean between 2 and 6, your answer is what? 4, because 4 minus 2 and 6 minus 4 both is equal to what? 2. After inserting, this three numbers should follow what? AP. Exactly same way, after inserting arithmetic mean with two numbers A and B, this arithmetic mean, after inserting this A, capital A and B should be in AP. So we find that twice A is equals to A plus B, and what is the value of capital A? It is A plus B divided by 2. Alright? So this is the formula using which we can find out arithmetic mean between two numbers and arithmetic mean between two numbers. You can see that 4 is equals to 2 plus 6 divided by 2. Alright? So we have exercise 14D. I'm taking the first question. Number one. You have got 6 and 12. And we have to find arithmetic mean between 6 and 12. So what is the answer? A plus B divided by 2. So what is 6 plus 12 divided by 2? It is 9. Because 9 minus 6 is 3 and 12 minus 9 is also equals to 3. Alright? Now suppose what happens if we insert more than one arithmetic mean. Let's say, suppose we want to insert more than one arithmetic mean between two numbers. Then let us see what is the case. How we can solve the question if we have to insert more than one arithmetic mean. Let's say one, for example, 2's number 1. You have got 5 and 17, two numbers, and you have to insert three arithmetic means. Okay, you have to insert how many arithmetic means? Three arithmetic means. So let's give three gaps here. Okay, three blanks here. Okay, so just note down इस सम को इन लोग को एग्जैक्टली जैसे मीन का हम लोग सम करते हैं अरिथमेटिक मीन का एपी का सम, वैसे एपी का सम, वैसे इसको हम लोग को सॉल्व करना है. जैसे यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है बताना एक बार, 5. अगर मान लो 5 के बाद 3 नंबर्स हैं तो 17 कौन सा टर्म है बताना एक बार. 17 कौन सा टर्म है? 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म है 17. मतलब अगर हम 3 नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो 17 जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म. अगर 4 नंबर्स इंसर्ट करेंगे तो तुम काउंट करके देख लो. अगर मान लो मैं 4 नंबर्स इंसर्ट कर रहा तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जितना नंबर्स इंसर्ट करेंगे उससे लास्ट का जो टर्म जो होगा उसका पोजीशन 2 ज्यादा होगा. सो 17 इज विच टर्म? इट इज फिफ्थ टर्म. Now, in order to determine, fill up these gaps, only we need to know what is common difference. So let us determine common difference. Let D be the common difference. Okay. So the formula is, now let's use this given condition, that is fifth term is 17, and use the formula of term, that is A plus n minus 1 into D. So after solving this, we are getting 17 minus 5, which is how much? 12. 12 by 4, which is how much? 3. So what is the common difference? It is 3. After we know the common difference, which is 3, we can determine the first arithmetic mean, or we can say the second term of the series, of the sequence, okay? Or we can say
that if I start from here, if I talk about between 75 and 70, this is the first arithmetic mean. बट अगर मैं इसको स्टार्टिंग से देखूं तो इस सीक्वेंस का ये कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म. तो सीधा सिंपल सा चीज हम कर सकते हैं. 5 plus 3 8, 8 plus 3 is 11. Okay, 11 plus 3 is how much? 14. 14 plus 3 is how much? 17. So we find that एक नॉर्मल सम की तरह इसको अगर हम सॉल्व करें तो इजीली आंसर आ जाएगा. ओके नाउ तो यहाँ पे तुम लोग 1 से लेकर के और 4 तक सारा सम्स हो जाएगा तुम लोग से. ध्यान रखना जितने भी नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उनके बीच में हमेशा याद रखना जो लास्ट टर्म होगा उसका पोजीशन 2 ज्यादा होगा. मतलब अगर इसके बीच में हम सपोज n नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो 17 कौन सा टर्म होगा? n plus 2. याद रखना 17 कौन सा टर्म होगा? n plus 2 टर्म. क्लियर एवरीवन? नाउ अब 4 के बाद जो कंसेप्ट है वो 5 से लेके 9 तक वो एक जैसा सम है. ठीक है, तो मैं एक बार ये बता दूं, लेकिन इसके लिए कुछ कंसेप्ट्स की जरूरत है तो मैं वो पहले बता देता हूँ क्या क्या कंसेप्ट्स लगेगा इसमें. दैट इज सपोज मान लो यहाँ पे दिया रहेगा 3 numbers are in AP. मान लो अगर ऐसा लिखा रहेगा 3 numbers are in AP, तो अगर मान लो 3 numbers AP में है तो हम नंबर्स को क्या लेंगे बताना एक बार. सबसे बेस्ट है इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ तुमको. 3 नंबर्स तो एक मिडिल टर्म एक ही होगा, उस मिडिल टर्म को ए ले लेना. लेफ्ट में एक होगा, राइट में इसके एक टर्म होगा. लेफ्ट का टर्म लाने के लिए डी सबट्रैक्ट कर देना और राइट का टर्म लाने के लिए डी को ऐड कर देना. सिंपल. अगर मान लो हम लोग को 5 नंबर्स इंसर्ट करना है, 5 नंबर्स आर इन एपी. सपोज ये दिया रहेगा 5 नंबर्स आर इन एपी, तो बीच का एक टर्म होगा, मिडिल टर्म एक होगा. 5 है तो एक मिडिल टर्म होगा, लेफ्ट में 2, राइट में 2. राइट का निकालने के लिए डी ऐड करते रहना और लेफ्ट का निकालने के लिए डी सबट्रैक्ट करते रहना. बस इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका. अगर लेकिन ऑड नंबर्स होगा जैसे ऑड नंबर्स होगा तो ये लॉजिक है. 4 नंबर्स होगा तो क्या होगा देखना है. एक बात बताओ, 4 नंबर्स एपी में तो मिडिल टर्म कितने हैं? 2. ठीक है, तो बीच का टर्म ले लेंगे हम लोग a minus d एंड a plus d. नोट डाउन. अब बताओ एक बार, अगर 2 मिडिल टर्म है तो इसके लेफ्ट में एक टर्म होगा, इसके राइट में एक टर्म होगा. ठीक है ना. अब बताओ तो इन दोनों में इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? a plus d माइनस ऑफ a minus d. 2d है कॉमन डिफरेंस, तो इसके लेफ्ट का टर्म लाने के लिए 2d सबट्रैक्ट करना है. ठीक है ना. और राइट का टर्म लाने के लिए 2d ऐड करना है. इसमें हम 2d ऐड करें तो क्या हो जाएगा? a plus 3d. ऑलराइट, तो इसी तरह से 6 नंबर्स 8 नंबर्स ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं इस तरह का. तो इसको हम लोग एज ए डायरेक्ट हम इसको अप्लाई करेंगे सम में. सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर आफ्टर 5 4. इसको हम लोग यूज करते हैं. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर. लेट्स टेक नंबर 5 एंड नंबर 10. 5 और 10 तो सम हम लोग करेंगे, बाकी सम हम एक बार ट्राई करेंगे. सी सम ऑफ 3 नंबर्स. देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया 3 नंबर्स. सो लेट द 3 नंबर्स इन एपी बी a minus d, a and a plus d. ठीक है, ये तीनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 33 है. वी नो दैट इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है? इट इज 33. सो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इसको ब्रैकेट आते हैं तो यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा. 3a equals to 33. So what is the value of a? It is 11. Done. Therefore the numbers are 11 minus d, 11 and 11 plus d. ये हो गया नंबर्स. अब एक और कंडीशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है देखना एक बार, रीड करना क्वेश्चन नंबर 5 में. एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 461. ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या है बताना एक बार? 461. और यहाँ पे हमको नंबर्स निकालने हैं. ठीक है, तो नंबर्स निकालने में सिर्फ a से हो जाएगा? नहीं, b भी तो चाहिए ना. एक और कंडीशन दिया हुआ है. क्या है वो कंडीशन? दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब 11 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 11 प्लस d का होल स्क्वायर कितना है? इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? रीड द क्वेश्चन. इट इज 461.
तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको एक और जो हमको चाहिए था डी का वैल्यू वो मिल जाएगा. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. a square, तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं. तो यहाँ पे सॉल्व करने से क्या हो रहा है कि वी आर फाइंडिंग दैट माइनस 22d प्लस 22d कैंसिल हो गया. डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 2d स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद 121 तीन बार है, 363 हो गया. इसको राइट में ले लेते हैं हम लोग, तो डी स्क्वायर हो जाएगा 461 माइनस 363 is how much? 8, 9, 98. Okay, it's 98. Divided by 2. कितना हो जाएगा? 49. तो D कितना हो जाएगा? Don't just write 7. Write plus minus 7. Therefore, the three numbers are okay. Numbers are तो थ्री नंबर्स हम लोगों ने जो a का वैल्यू 11 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जो थ्री नंबर्स लिखा था वो ये है. अब क्या करना है, एक बार d का वैल्यू 7 लगा देना. सो 11 minus 7 is 4, 11 and 18. देखो एक बार, ठीक है, AP में है. ओके, यस. और एक बार d की जगह माइनस 7 लगा देना, तो आ जाएगा 18, 11 and 4. दोनों लिखना जरूरी है. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, बाकी देखो सब एक जैसा ही है. मैं नंबर 10 बता देता हूँ. Now in number 10, see everyone, there are first 5 terms of AP. तो क्यों ना हम लोग पहला 5 टर्म्स को ले लेते हैं, इजी हो जाएगा ना सब हमारा. तो लेट a माइनस बीच का हो गया a, तो लेफ्ट में कितना हो गया 2 टर्म, मतलब a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d. ऑलराइट एवरीवन, ये 5 नंबर्स हो गया आर इन AP. Other 3 numbers, other 5 numbers, sorry, 5 numbers in AP. मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पहला वाला जो है वो A1 है, सेकंड वाला A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 एंड दिस इज A5. ऑलराइट एवरीवन, अब देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है, A1 plus A3 plus A5 is how much? -12. We know that A1 plus A3 plus A5 is how much? It is -12. A1 हो गया यहाँ पे A minus 2D, A3 हो गया A, और A5 हो गया A plus 2D. -2D plus 2D कैंसिल हो गया, तो यहाँ से A का वैल्यू आ गया -4. और राइट, एक चीज मिल गया, A मिल गया. अब हम लोग को एक और कंडीशन दिया हुआ है, A1 into A2 into A3 is 8. Also, A1 into A2 into A3 is 8. That is A minus 2D, A minus D and A is how much? 8. अब यहाँ पे A का वैल्यू 4 पुट कर देना. ठीक है, A का वैल्यू 4 पुट कर देना. ठीक है, मैंने शायद करेक्ट लिखा है ना, A1 into A2 into A3. तो यहाँ पे -4 minus 2D -4 minus D into -4 is equals to 8. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे माइनस साइन, यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ. पहले इसको थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ रिड्यूस करने की. ठीक है, तो यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 प्लस डी. यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो बचा 4 प्लस डी इंटू -4. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और कितना आ गया -8. कैंसिल हो गया 8, तो बचा यहाँ पे -2 प्लस डी. अब मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जो है 8, 2d plus 4d plus d square equals to 1. So we have -d square. All right.
-6 d minus 8 equals to 1. Bring 1 on the left hand side. ठीक है, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं एक चीज और देख रहा हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो एक बार, b प्लस 3 का होल स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो d प्लस 3 होगा 0 और d का वैल्यू क्या हो गया -3। अब बस d का वैल्यू यहाँ पे -3 और a का वैल्यू -4 पुट कर दो। a -4 d -3 पूरा जगह पे तुमको क्या निकालना क्या था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था। तो ये मत सोचना कि फर्स्ट टर्म तुम्हारा a है, प्लीज नोट डाउन। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो जाता है, पूरा सम राइट हो जाता है, राइट लिखने के बाद सबको रॉन्ग कर देते हैं। क्या रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में एक बैठा रहता है कि a मींस फर्स्ट टर्म, b मींस कॉमन डिफरेंस। नहीं, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म a minus 2d है, सेकंड टर्म a minus d है। समझ में आया तो बात। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, therefore first term equals to a minus 2d. What is the value of a? -4. 2d, and what is the value of d? -3. So the answer is 2. 2 is the first term. Common difference क्या है, cd में लिखना common difference। इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो, एक ही बात है। a minus d माइनस ऑफ a minus 2d। देखे थे, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आता है, d आ रहा है। अलग बात है कि यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस आ गया, लेकिन ये चीज करके देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कॉमन डिफरेंस 2d भी होता है, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। मान लो जब तुम डिफरेंस निकाला और वहां पे 2d आ गया तो फिर तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ d आ रहा है तो अलग बात है, d का वैल्यू -3 लिखिए, 2d आ रहा है तो क्या होता है, 2 into -3 -6 हो जाता है। करेक्ट। तो ये रहा सेकंड टाइप कांसेप्ट के ऊपर सम्स, जहाँ पे सम नंबर 5 से लेके 11 तक सारा सम्स हो जाएगा। अच्छा, अब हम बताएंगे 12 ऑनवर्ड जितना सम है उसमें एक नया कंसेप्ट रहेगा। पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं, फिर मैं 2-4 सम्स बता दूंगा। ओके, ध्यान देना। नाउ इसमें क्या जानना है, ध्यान देना एक बार। सबसे पहला चीज, लेट्स टेक 2,4,6। सबसे पहले बताओ क्या 2,4,6 एपी में है? बिल्कुल है। कैसे? 4 minus 2 का वैल्यू 6 minus 4 का वैल्यू क्या है, सेम, तो ये एपी में है। पॉइंट नंबर 1, अगर हम एक अगर गिवन सीरीज सीक्वेंस एपी में है और उसका टर्म्स को रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने के बाद भी क्या होगा, एपी में ही रहेगा। चेक कर लो एक बार, रिवर्स कर दिया मतलब जो था बस चेंज कर दिया मैंने, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म। ओके, तो देखो 4 minus 6 और 2 minus 4 क्या है, सेम है, -2, इसीलिए ये एपी में है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो 3 या 4 नंबर्स या जितने भी n नंबर्स एपी में है, तो उसके टर्म्स को रिवर्स करने से जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी में ही होगा। समझ में आया तो बात, ये एग्जांपल से क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद अगर मान लो ये सीक्वेंस एपी है, इसमें हम अगर कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें, कांस्टेंट वैल्यू अगर हम दिया हुआ एपी में कांस्टेंट वैल्यू ऐड करें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म होगा वो भी एपी में ही होगा। देखो एक बार, 8 minus 6 is 2, 10 minus 8 is 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ कांस्टेंट k को अगर हम if k is added or subtracted, not only add या subtract कुछ भी करें, तुम देख लो, ऐड मैंने ऐड किया, तुम subtract करके भी चेक कर सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सीरीज एपी में है? बिल्कुल, चेक कर लो। 0 minus or minus 2 is +2, 2 minus 0 is 2। So if k is plus or added or subtracted to the given AP, the resulting numbers are also in AP, also in AP। Alright, तो यहाँ पे हमको देखना, और सेम है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 246 AP में है, मैं कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूँ, 4, 8, 12, ये भी एपी में है। देखो 8 minus 4 is 4, 12 minus 8 is 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इफ k is multiplied or divided
in the to the given AP, to the given AP, the resulting numbers are in AP. ये चीज को समझ, मतलब हम लोग सीक्वेंस को रिवर्स कर सकते हैं तो भी एपी में ही होगा, अगर गिवन सीक्वेंस एपी में है तो ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो भी एपी में होगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी एपी में ही होगा। बट जो ऐड सब्ट्रैक्ट करे वो हर जगह सेम होना चाहिए, जो मल्टीप्लाई डिवाइड करे वो हर जगह सेम होना चाहिए। ओके, सो लेट अस डू सम्स बेस्ड ऑन दिस। Now let us take question number 13. देखना एक बार, बहुत आसान है ये वाला, ये टाइप का सम देखना एक बार। So it's already given that given अगर 1 by x 1 by y 1 by z अगर AP में है, अगर ये AP में है तो शो करो पहला वाला केस कि क्या yz zx और xy भी AP में है या नहीं, ये शो करना। ठीक है ना, तो एक बार ध्यान देना, एक बार बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। सो वी नो दैट 1 by x 1 by y 1 by z आर इन AP है या नहीं, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा देख के दिमाग, ये AP में है, ये हमको प्रूव करना है कि क्या ये भी AP में है या नहीं। तो एक बात बताओ, x है यहाँ पे yz है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में y है, देखो यहाँ zx है, z है डिनोमिनेटर में, यहाँ xy है, xyz xyz xyz। मतलब एक चीज थोड़ा सा सोच के देखो कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ये चीज, xyz, सब में क्या मल्टीप्लाई करेंगे xyz, अलग अलग चीज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सेम क्वांटिटी। तो सारा में अगर हम xyz मल्टीप्लाई कर दे, सारा में xyz मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग ने अभी चेक किया था कि ये AP में ही रहेगा, है कि नहीं। ऐसा करने के बाद x कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं ये AP में है? यस, इट इज ट्रू, इट इज इन AP। इसके बाद आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। नंबर 2 में क्या है, एक बार रीड करना, बुक 2 में ये प्रूव करना है कि क्या xy xz yz are in AP or not. If condition is 1 by x 1 by y 1 by z are in AP। तो एक चीज बताओ मुझे, तुम लोग को ये पता है AP में है और ये प्रूव करना है। देखो नंबर 1 में ऑलरेडी मैंने इस स्टेप से ये स्टेप तो प्रूव कर दिया है ना। अगर तुम ये बोलोगे नहीं हम फिर से करना चाहते हैं यहां तक प्रूव, जैसे तुमको मैंने अभी बताया था कि 2 4 6 अगर AP में है तो 6 4 2 भी AP में होगा, क्योंकि रिवर्स करने से थोड़ी ना सीक्वेंस बदल जाएगा, बिकॉज सीक्वेंस मतलब पैटर्न थोड़ी ना बदलेगा, वो पैटर्न AP पैटर्न ही है फॉलो कर। तो हमने इससे तो देखो, इससे तो ये प्रूव कर ही दिया ना, तो अब 1 को यूज कर लेते ना, क्या करेंगे 1 को यूज कर लेते, क्योंकि 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि yz xz xy आर इन AP, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, बस रिवर्स कर देते ना। यहां पे लिख सकते हैं तुम लोग, since reversing an AP the given resulting numbers are also in AP, ऐसे लिख सकते हैं। If a constant is multiplied to an AP to the numbers of an AP, the resulting numbers are in also AP, ऐसे तुम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट वगैरह, ज्यादा बेटर होगा। ओके एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर। अब तीसरा वाला पार्ट देखना है, तीसरा वाला पार्ट कैसे हम लोग करेंगे। तीसरा वाला पार्ट क्या है, हम लोग को प्रूव करना है y प्लस जेड बाई एक्स, उसके बाद है z प्लस एक्स बाई वाई x प्लस वाई बाई जेड, प्रूव करना है कि क्या ये AP में है या नहीं। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान, ये AP में है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सोचो, क्या करूंगा देखना एक बार, सब में मैं x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना।
सब में x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई कर देने से भी सीक्वेंस चेंज नहीं होगा. लिख देना, since multiplying x plus y plus z to the numbers of above AP, the resulting numbers are in also AP. बगल में लिख देना. अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. यहाँ पे हमको चाहिए, सॉरी यहाँ पे y plus z by x चाहिए, z plus x by y चाहिए. तो हम क्या करेंगे पता है, सारा में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये पता है, ये ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा. मतलब एक बार में ऑब्वियसली दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि ये कैसे दिमाग में आएगा. अभी भी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत, आई मीन बहुत लोगों को. लिख देना आर इन ए पी. क्यों, देखो 1 क्यों सब्ट्रैक्ट करने का दिमाग में आया, देखो क्योंकि नीचे x है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ y प्लस z चाहिए. तो यहाँ पे -1 लगा दे और एलसीएम ले लें तो बताओ तो क्या आएगा. एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे -x आ जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा. तो ये लेवल का सोचना पड़ेगा तुम लोग. यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा. समझ में आया तो बात? ओके, आर इन एपी. तो इस तरह का कंसेप्ट यूज करना है. सम नंबर देखना 14 में भी एकदम सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एकदम डिफरेंस नहीं. तुम जितना बार भी ऐड करते जाओ, वापस अगर जरूरत पड़े तो इसके बाद भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. मैं बस यही बोलूंगा कि मैंने एक सम करा दिया सारा टाइप्स. तुम लोग करके अपना अपना डाउट्स तुम लोग सेंड करो, ठीक है. जितना जल्दी भेजेगा उतना जल्दी मैं रिप्लाई करूंगा. सो यू ऑल सेंड, यू ऑल आई मीन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 14D. और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं. थैंक यू एवरीवन.